Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you're enjoying the best of health. I welcome you in my class, that is English for grade 5. We are going to start unit 3. Its title is We All Are Equal. I'm going to tell you SLO based lecture division for this unit and what this unit is all about. Okay. So in lecture 1, we learn about singular and plural nouns, and we'll cover the SLO to change the number of more regular and irregular nouns and nouns with no change in number. Lecture 2, under the title of Formal and Lexical Skill, we'll learn about parts of speech and we'll cover the SLO to organize vocabulary items learnt in class and from the extended environment, including media, in a notebook according to parts of speech and word family, and change part of speech of a given word. Lecture 3, we'll learn the use of the, and we'll follow the SLO to classify more words that begin with vowel sound, identify and practice the use of the with words starting with consonant and vowel sounds. Lecture 4, we'll learn about digraphs and we'll cover the SLO to articulate, practice, and syllabify words containing digraphs. Lecture 5, we'll start reading and comprehension of this unit, and we'll cover the SLO to use pre-reading strategies to predict the content of a text from topic and picture and locate specific information to answer short questions. Lecture 6, we'll continue reading and comprehension of the unit, and we'll complete the SLO to locate specific information to answer short questions. Write sentences of their own using correct capitalization, punctuation, and spellings. Lecture 7, under the title of Oral Communication Skills, we'll learn to show agreement and disagreement, and we'll cover the SLO to demonstrate conventions and dynamics of group oral interactions to agree or disagree politely. Locate specific information in our calendar and our class timetable. Lecture 8, we learn about how to use WH question words, and we'll cover the SLO to respond to and ask more WH questions. Lecture 9, we'll learn how to write a paragraph, and we'll cover the SLO to read a paragraph as a large, meaningful unit of expressions to recognize that the main idea in a paragraph is carried in a sentence called the topic sentence. Other sentences in the paragraph support this topic sentence. Recognize each paragraph in a text as a separate meaningful unit of expression and write guided paragraph using ideas gathered and organized through various strategies. Yes, my dear children, this is all about the SLO based lecture division of this unit. Now let's see what the title and the unit is all about. First of all, the title of the unit is We All Are Equal, यानी कि हम सब बराबर हैं. बिफोर गोइंग टू टेक्स्ट बेटा, मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको समझाना चाहती हूँ. इक्वल का मतलब बराबर होता है, सेम नहीं. हम सब सेम नहीं हैं, लेकिन हम इक्वल हैं. अब इस बात का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल नमाज पढ़ना हम सब पर फ़र्ज़ है, उसके लिए हम सब इक्वल हैं. गर्ल्स भी नमाज पढ़ेंगी, बॉयज़ भी नमाज पढ़ेंगे. वी आर इक्वल. ओके. अब फ़र्क क्या है कि गर्ल्स घर में नमाज पढ़ सकती हैं, बॉयज़ मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हैं. दिस इज़ डिफरेंस. वी आर बिकॉज वी आर नॉट सेम, लेकिन हम इक्वल हैं, हम बराबर हैं. हम में से कोई भी नमाज को छोड़ नहीं सकता. ये बात आपने अच्छी तरह से समझनी है कि इक्वल का मतलब बराबर होता है. इक्वल का मतलब एक जैसा या सेम नहीं है. समझ आई? ओके. अब देखते हैं इस यूनिट में किस तरह से इस बात को एक्सप्रेस किया गया है.
It was a delightful Sunday and everyone was at home. Mother was preparing lunch in kitchen. Father was reading newspaper. Roha and Fahad were playing nearby. The mother called Roha and Fahad from the kitchen. ये यहाँ पर बेटा क्योंकि ये जो यूनिट है ये एक डायलॉग फॉर्म में है, तो डायलॉग को स्टार्ट करने से पहले मंजर कशी की जाती है, उसका सीन स्केच किया जाता है कि कहाँ पर और किस जगह पर किस तरह से ये डायलॉग स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पर क्या है कि संडे यानी छुट्टी का दिन है और सब लोग घर पर हैं और अम्मी जान किचन में खाना तैयार कर रही हैं और अब्बू जान अखबार पढ़ रहे हैं। रोहा और फहद जो कि दो बच्चे हैं, एक बहन है रोहा और उसका भाई है फहद, वो पास ही करीब ही खेल रहे हैं और अम्मी जान ने किचन से बावर्ची खाने से रोहा और फहद दोनों को आवाज़ दी। अब क्या हुआ, मदर यानी अम्मी जान ने कहा रोहा टेक आउट प्लेट्स फॉर द लंच एंड फहद फिल बॉटल्स। अब अम्मी जान ने दोनों को आवाज़ दी और दोनों को एक एक काम दिया है। रोहा को कहा है कि आप किचन से प्लेट्स लेके जाइए और फहद को कहा है कि आप पानी की बॉटल्स भर के लाओ। फहद, रोहा यू शुड फिल वाटर बॉटल्स, आई एम फिलिंग। अब ये फहद ने क्या कहा कि रोहा पानी की बोतलें आप भरेंगी, मैं तो खेल रहा हूँ। रोहा, फहद फिलिंग बॉटल्स डज नॉट टेक मच टाइम। यही होता है ना बेटा, यही हम कहते हैं ये कौन सा ज़्यादा टाइम लगेगा, जल्दी से पानी की बॉटल्स भर लो। अब फहद ने उस पर कहा कि ये तुम्हारी ड्यूटी है, यू एंड मदर शुड डू दी हाउस होल्ड टास्क। फहद क्या कह रहे हैं कि अम्मी जान के साथ रोहा तुम लड़की हो, तुम्हारा काम है किचन का काम करना, ये मेरा काम नहीं है। डू वी डू दैट? क्या फहद ने सही बात की है? नो, यस माई चिल्ड्रन यू आर स्मार्ट। अब ये बात चूँकि अब्बू जान पास ही बैठे सुन रहे हैं, उन्होंने कहा कम हियर बोथ ऑफ यू, दोनों आइए यहाँ पर। फहद एंड रोहा, श्योर फादर। वो जल्दी से अब्बू जान के पास जाते हैं। अब अब्बू जान ने कहा फहद, हाउस होल्ड टास्क्स आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर मदर एंड सिस्टर बट यू कैन हेल्प देम इफ़ दे नीड योर हेल्प। बेटा ये मेरे बेटे जो है ना बॉयज़, उनके लिए यहाँ पर एक मैसेज है कि ठीक है घर के काम लड़कियाँ करती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लड़के कर ही नहीं सकते। अब या तो आप किसी ऐसी जगह पर बिजी हैं कि आप वो घर का काम नहीं कर सकते, दैट्स अनदर थिंग, लेकिन आप पास बैठे खेल रहे हैं और अपनी बहन को आप कहें कि नहीं जी मैं तो खेलता रहूँगा आप काम करें, तो दैट्स नॉट रॉन्ग। बेटा ये रवैया ही दुरुस्त नहीं है, ठीक है? तो हमें एक दूसरे की हेल्प करनी है, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है। एक फैमिली का तो यही मतलब है कि हम सब मिलजुल कर रहें। और बेटा हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान एक फैमिली है, अल्लाह अकबर। तो हमें इस बात का हर वक्त ख्याल रखना है कि जो काम हम कर सकते हैं, कोई काम बड़ा या छोटा नहीं है, कोई काम उसका और मेरा नहीं है, सब काम हमारे हैं। अल्लाह ताला काम करने वालों से खुश होते हैं, राइट? यहाँ पर भी इसकी मिसाल अभी देखने को मिलेगी। फादर, डूइंग योर ओन वर्क बाय योर सेल्फ इज सुन्ना। ये हमारे प्यारे नबी की बहुत प्यारी सुन्ना है। और आपको पता है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो हर काम खुद कर लेते थे, अपने टूटे हुए जूते को भी खुद सिलाई कर लेते। तो हम क्या चीज़ हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? हर काम हम अपने हाथ से कर सकते हैं, ठीक है? उससे एक खूबसूरत सुन्ना भी पूरी होती है और अल्लाह ताला भी राज़ी होते हैं। और बेटा हमें इस दुनिया में भी उसका बेनिफिट ये मिलता है कि हम स्किलफुल होते हैं, हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते, किसी को कहना नहीं पड़ता, हम हर काम खुद अपने लिए कर सकते हैं। हाँ यस, यू आर यंग, अभी आप छोटे हैं, बहुत से काम आप अभी नहीं कर सकते, उनकी तरफ नहीं जाना आपने, दैट कैन कॉज एन एक्सीडेंट, सो बी केयरफुल। जैसे ये पानी की बॉटल भरना है तो यू शुड बी द वन टू से यस आई कैन डू इट, लाइए मुझे दें। और पानी पिलाना तो वैसे भी देखे कितना सवाब का काम है, राइट? रोहा, yes father I have heard it. Fahad, I have read it in my book. Father, very good. Very good. When your mother gets sick or have extra burden of work at home, I help her with it. And we are a family. We should help and care for each other. All tasks should be divided equally. Right? कि हम एक ख़ानदान हैं, हम एक घर में रहते हैं, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है और मिलजुल कर काम करना है। Yes, father, you are right. I always help mother too. Sure, father, I will take care of this thing from now onwards. ठीक है बेटा, अब मेरे जो बेटे हैं उन्होंने भी इस बात का ख्याल रखना है और जो मेरी बेटियां हैं उन्होंने भी। बेटा ये नहीं है कि आप भी अब खुद बैठी रहें भाई से कहें आप काम करें,
हमने मिलकर काम करना है, ठीक है। मिलजुल कर काम करने से ही अल्लाह की रहमतें और बरकतें नासिल होती हैं। That's really good, Fahad. Now go to fill the bottles. Roha, you also help your mother. All right, father, the lunch was ready. Father got up and set the table with mother. You see, तो बेटा हमने ये चीज़ें जो काम के हवाले से हैं वो हम सब मिलकर करेंगे, उसमें हम इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन कुछ चीज़ें देखिए, हम जब जहाँ फैशन की बात आती है, अब गर्ल्स बॉयज़ वाले फैशन करना शुरू कर दें, जी हम तो बराबर हैं। डज इट मेक सेंस? ये तो बड़ी बेवकूफ़ी है कि अल्लाह ने एक बच्चे को लड़की बनाया, एक बच्चे को लड़का बनाया, अब वो लड़कियों वाली हरकतें करे और वो लड़कों वाली हरकतें करे। ये बेवकूफ़ी है, ये बराबरी नहीं है। हमने इस तरह की बेवकूफ़ियाँ नहीं करनी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें समझ दी, अल्लाह ने हमें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत दी। तो हमने अपनी लिमिट्स के अंदर रहते हुए अपना जो आपका अटायर है, जो आपका स्टाइल है, जो लड़कियों के लिए है वो लड़कियां करें, जो लड़कों के लिए वो लड़के करें। लेकिन यस, जब आती है बात जिम्मेदारी की, काम करने की, तो फिर हम बराबर हैं। डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द रिस्पॉन्स? दिस इज फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी वी आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वी आर इक्वल। लेकिन अपनी जो हमारी एक अल्लाह ताला ने ये डिफरेंस रखा है कि एक फीमेल और मेल आर नॉट सेम, वो हमने कायम रखना है। लड़कियां लड़कियों के साथ दोस्ती करती हैं और लड़के लड़कों के साथ दोस्ती करते हैं। लड़कियां लड़कियों की तरह दिखती हैं और लड़के लड़कों की तरह दिखते हैं। ये स्मार्टनेस हमने कभी नहीं छोड़नी। जहाँ काम की बात है वहाँ हम सब बराबर हैं। मैंने भी काम करना है, आपने भी काम करना है, और हम सब ने मिलकर अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, अपने मुआशरे को सपोर्ट करना है। डू यू अंडरस्टैंड? वेरी गुड. So let's see, there is a beautiful message from Quran as well. O you who believe, be careful of your duty to Allah and be with the true ones. You see, subhan Allah, बेटा जब हम कुरान पढ़ते हैं ना तो हमें सारी बातें बहुत अच्छी समझ आती हैं। अल्लाह ताला ने कहा ओ यू हु बिलीव, जो भी ईमान रखता है, वो औरत है या मर्द है, वो मेल है या फीमेल है, देयर इज़ नो डिफरेंस। अल्लाह के सामने हम सब बराबर हैं और हम सब ने अपनी जिम्मेदारी जो अल्लाह ताला ने हमें दी है वो निभानी है। और वह क्या है कि हमने अल्लाह की इबादत करनी है, सिर्फ़ और सिर्फ एक अल्लाह के अहकामात पर हमने चलना है। डू यू अंडरस्टैंड? इक्वल होने का ये मतलब है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह जो अच्छी बातें आज हमने सीखी हैं इनको हम ज़हन नशीन रखेंगे और इन पर अमल करेंगे, दूसरों को भी बताएंगे और हमेशा अच्छे बच्चे, अच्छे मुसलमान बनने की कोशिश करेंगे। सो टुमारो विल स्टार्ट फ्रॉम लेक्चर 1. Till that time, keep learning, keep practicing, take very good care of yourself and the people around you. Thank you and Allah Hafiz.